हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल एजुकेशन हो रहा। हम लोग जो पिछली क्लास में जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे हम लोग एवरेज की डिफिनीशन वगैरह पढ़े थे। तो हम लोग जो है इसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है सिंपल अरिथमेटिक मीन्स जो है के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी सब कैटेगरीज है, जो है कंटिन्यूस सीरीज, जिसका जो है डिस्क्रीट सीरीज, और वो सब जो है हम लोग एक एक करके करेंगे। उसके बाद साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी उसमें देखते हुए एग्जाम्पल सहित चलेंगे। ठीक। तो हम लोग पर जो है पिछली क्लास में यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एवरेज क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज। It is calculated by taking into account the values of all the items of this series. Therefore, mathematical average is the mean it is the measure of central tendency. In last class we have studied, and now we will start the next types of mean or mathematical average. There are three types of: the arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. Today we will cover about the arithmetic mean. So what is the arithmetic mean? It is noted as AM in short form, geometric mean GM, and harmonic mean HM in short form. Arithmetic mean is the quantity obtained by dividing the sum of all the values. Dividing sum of all the values of the item in a series by their numbers. Arithmetic mean of sample is denoted as x bar of n observation x1, x2, x3 plus data from x1 to xn, and is the n number of the numbers of the samples is computed by the formula. This is x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus data plus xn divided by n. N is the total number of the samples. Suppose that you have 4 samples, then you will be calculated mean of that sample by the x1 sample 1, x2 sample 2, x3 sample 3, and x4 sample 4 values plus divided by total number of samples. Here is 4. We will see an example in next slide. It is also denoted as summation of x upon n. Summation means what is the summation? Summation is it is also, it means x1 plus x2 plus x3 is equal to summation. If you will start from I from initial value 1 to up to value n, then it is denoted as I is equal to 1 to n of summation of x divided by n. This is the formula of the arithmetic mean, simple arithmetic mean. Arithmetic mean of population or population mean is the sum of the values of all observation in the population divided by total number of the observation in population, capital N, and is computed by the following formula. Mu is equal to I is equal to 1 to summation of n from I is equal to 1 to up to n, and the summation of xi from xi is the initial value, n is the total number of the populations. Here x1, x2 is the sample, and n is the total number of the population from which we have taken the sample. Merits of arithmetic mean and demerits of arithmetic mean.
merits of arithmetic mean it is certainty, simplicity, stability, and based on the all of the observation of data, suitable for algebraic statement on basis of comparison, balance, and accuracy. These are the merits of the arithmetic mean. That it is simple and its data is shows stability and also the certain. It is not very, and based on the all of the observation, we take the all of the observation of the data, not only a few samples were taken. Suitable for algebraic treatment, we can employ the mathematical formula of the summation. That's the reason it is called algebraic treatment on basis of comparison, and we can compare one sample from the other samples, one mean of the samples to other sampling methods, and balance and the accuracy of the sampling. एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन व्हाट इज द डिमेरिट्स, और जो है इसके जो है मतलब ये आपके गुण हो गए। मेरिट्स अर्थमेटिक मीन का क्या हो गया, मेरिट्स हो गया, गुण हो गया। इसमें गुण में क्या सर्टेनिटी है, सिंपलिसिटी है, आसान है, सिंपल है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द सारे डाटा को जो है जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं सारे आपको जो है जितने अवलोकन किए होते हैं, जो जो सैंपल्स को हम का ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम इसको लेते हैं सुटेबल फॉर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको अंक गणितीय जो है अलजेब्रिक जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको जो है, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन पे आधारित होता है, मतलब आधार बन सकता है कंपैरिजन का, सब कंपेयर किया जा सकता है दूसरे से। बैलेंस जो है एक्यूरेसी एंड डिमेरिट्स ऑफ में इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, it affected by the extreme value, the value which is above the range of the mean values. Suppose that problem in case of incomplete data, mean value may not figure in this series. Mean value may not figure in this series, problem in case of incomplete data, ठीक है। मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन दिस सीरीज 4, 8, 15 एंड 21 मीन इज 12 बट नॉट अपेयर इन द सीरीज। मतलब क्या हुआ कि मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन दिस सीरीज, अगर जो है इनकम्प्लीट डाटा की सीरीज होगी कोई, ठीक है, वो पूरा डाटा सेट पूरा अगर नहीं होगा तो उसमें हम लोग अगर हम एवरेज निकालें, उसका मीन निकालते हैं, तो वो जो है जैसे 4, 8, 15 और 21 का मीन निकालते हैं जो है, तो आपका निकल के आएगा 12, लेकिन 12 इसमें कहीं अपेयर नहीं हो रहा है जो है, जबकि मीन वैल्यू की वैल्यूज़ के बीच में अपेयर होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसमें अपेयर नहीं हो रहा है। फिर इसको जो है मिसलीडिंग कैलकुलेशन, ये कॉलम अलग है और ये अलग है, ये आपका मेरिट्स का है, डिमेरिट्स का है, ठीक है, इसके साथ कंसीडर करके नहीं पढ़ेंगे, ये सेपरेट है। फिर मिसलीडिंग कन्फ्यूजन, फॉर एग्जांपल 3 वर्कर इन कंपनी ए आर गेटिंग डेली वेजेस 60, 70 and 80 rupees, and in company B workers wages are 60, 30 and 120, average daily 120, and then average daily income of A is equal to 60 plus 70 plus 80 divided by 3 is equal to 70, while in the case of B average value 60 plus 30 plus 120 divided by 3 is 70. These results are misleading because the workers in two factories have the same average income but different income structures. मतलब क्या है कि उनमें सब में जो है इनकम का जो है सेम इनकम का एवरेज शो कर रहा है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है जो है, जो इसका विस्तार है जो है, वो आपका जो डिफ़र कर रहा है। क्योंकि आप इसमें देखें जो है इसमें एक 30 वाला भी है, वो 30 का ही आ रहा है, लेकिन उसका एवरेज निकल के 70 आ रहा है, जो कि एवरेज से कि जो है उसके इनकम से काफ़ी जो है बैरी कर रहा है, एक्सट्रीम जा रहा है वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो है सही नहीं है, जो है कहीं ना कहीं डाटा को मिसलीड कर रहा है। वाइल इन द केस ऑफ ए 60, 70 and 80 the mean is within the 60 and 80 and it is not far more from the mean value,
and while in the case of 60, 30 and 120 just so major difference in the each value from the mean, that's the reason it is sometimes it misleads. If we will compare about the two factories, then it will show the both of the companies worker factory workers have the same average, but it is not true. While in the case of the, and it will be confusing. मतलब क्या हुआ आपका जो है दो कंपनी अगर हम ले रहे हैं जो है डेली का एवरेज दिया है ए और बी सी का जो है 3 वर्कर हैं, तीनों वर्करों का जो है दिया गया एवरेज जो है। अब इसमें क्या है जो है 60, 70 और 80 पा रहा है जो है उसका एवरेज आपका जो है कितना 70 आ रहा है, जो कि मीन वैल्यू जो है दोनों के रेंज में है, बहुत ज़्यादा जो है उसके रेंज से बाहर नहीं है। और ये जो है बाकी जबकि हम बी में देखें जो है तो बी में क्या है, एक का इनकम जो 60 है, एक की 30 है और एक की 120 पर डे है। डिवाइड कर रहे हैं हम तो आपका एवरेज भी 70 आ रहा है, दोनों का एवरेज सेम आ रहा है, बशर्ते जो उसका स्ट्रक्चर है, इनकम स्ट्रक्चर है वो जो है डिफ़र कर रहा है। जो है एवरेज तो ठीक है, एवरेज दोनों के बराबर आ गए, लेकिन इनकम स्ट्रक्चर इसमें जो है दो, एक 30 वाला एक 60 वाला है और 120 में उसे जो दोनों 70 इसका भी एवरेज आ रहा है, तो 230 वाले का काफ़ी कम हो जा रहा है। उससे जो है इस वजह से ये जो है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जो है मिसलीड करता है आपके रिजल्ट को, कंक्लूजन को। दैट अब्सर्ड रिजल्ट 5 फैमिलीज है चिल्ड्रन, मतलब तर्क संगत रिजल्ट जो है नहीं होता है, उससे गलत होता है, तर्क संगत रिजल्ट नहीं देता है, अब्सर्ड रिजल्ट देता है, गलत रिजल्ट देता है। इफ 5 फैमिलीज हैव चिल्ड्रन 2, 3, 4, 3 and 5, here is the 4, this is the 4, that should be comma, average is 3.4। जैसे कि इसमें हमें 2, 3, 4, 3 and 5 का एवरेज लेंगे तो 3.4 होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम बच्चों का जो है एवरेज जो है फ्रैक्शन में नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। 3.4 बच्चे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपेरिजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेज, जो है स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेज अगर हों मतलब हो इंटरवल जो है उनके लिए हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं इसको। कैन नॉट बी यूज फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टर, और इसको जो हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर से हम लोग पीछे क्लासेज में पढ़े थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर वो होते थे जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे हरा, लाल, पीला, नीला, ये सब जो इसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके थ्रू जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अब टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, इसमें इसके टाइप्स क्या क्या है अर्थमेटिक मीन के। इसमें जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन है, वेटेड अर्थमेटिक मीन है और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है। मतलब क्या हुआ, सिंपल एवरेज ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस, मतलब क्या सिंपल होगा तो सबको जो है बराबर जो है इम्पॉर्टेंस मिलेगा, जिसमें जितने सैम्पल्स हैं सबको जो इक्वल जो है चांसेज मिलेंगे, सब उसमें यूज होंगे, सारे सैम्पल्स का यूज किया जाता है, दैट्स अ रीजन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलता है, सबको बराबर महत्व मिलता है। मीन्स दैट सिंपल एवरेजेज ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन सिंपल अर्थमेटिक मीन। इन सिंपल अर्थमेटिक मीन सिंपल एवरेज ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस, एवरी आइटम्स हैव द इक्वल value in the importance in the sun. While in the case of weighted arithmetic mean, each value of the variable is multiplied by its weight and the products are 2। इसमें क्या है, each value of the variable is multiplied by its weight, इसमें जो है एक वेट डिसाइड होता है हर प्रोडक्ट का, उससे उसको जो है क्या किया, गुणा किया जाता है वेरिएबल्स में, ठीक। वेरिएबल्स में जैसे कि सैम्पल 1 है, उसका जो है उसमें जो है उसका वेट क्या है, उसका वेट मतलब उसका वैल्यू मतलब कितना उसका वेट है, उसका जिसका उपज बोल सकते हैं, उसका
जो है फ्रिक्वेंसी या इस तरीके से कुछ उसका वेट अगर हम मान के चलें उसका कितना वो है, कितने से हम लोग उसको जो है कितने टाइम्स गुणा करेंगे या कितना टाइम शो करेंगे उसका वेट होगा। फिर आपका अगला है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, जो है कैलकुलेटेड फॉर 2 और मोर सीरीज शामिल। इसमें को यूज कब किया जाता है, जब दो से अधिक सीरीज जो होती हैं, आगे हम लोग सीरीज की कोई जो करेंगे, जो है फ्रिक्वेंसी सीरीज होती है, इंटरवल क्लास वगैरह जो है उसमें जो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें जो है दो से ज़्यादा जो सीरीज होती है उसको जो है साथ साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक, फिर ये जो है इसमें जो है आपका क्या दिया है, ये जो है इसमें सिंपल अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड फॉर अनग्रुप डाटा ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ग्रुप डाटा ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तब ग्रुप डाटा ऑफ जो है इंडिविजुअल सीरीज एंड ग्रुप डाटा ऑफ द discrete series and continuous series. And while in the weighted arithmetic mean is the sum of total of the products of the values with their respective weight. ठीक, the sum total of the products of the values, जो values है उसके जो है उसका प्रोडक्ट विथ क्या उसका जो है वेट से, फिर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द वेट, वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है कहा जाता है। ठीक, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डेट xn डिवाइडेड बाई n इंटू 1000 इंटू 100, नॉट 1000, इट इज 100। Combined arithmetic mean is the mean of the 2 or more number of the items and their arithmetic means. It is calculated by the following formula. ठीक है, इसमें जो है x पे जो है डबल बार है, x डबल बार इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 के बार n3 एंड n1 प्लस n2 प्लस n3, ये इसके फार्मूले हैं, इसको हमें याद रखने पड़ेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के। ठीक है, ये इसके हैं आपके वेटेड अर्थमेटिक मीन के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 बटा n इंटू 100। ठीक, तो इसी को हम लोग आगे जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है क्या होता है, डिफरेंट फार्मूले आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा बोथ डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। मतलब जो है इसमें डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड होता है, दोनों उसके लिए अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं, और जो है अलग अलग फार्मूले जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है, जो ग्रुप डाटा होंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा क्या, जो प्रोसेस डाटा होते हैं, अनग्रुप जो है अनप्रोसेस डाटा जो होते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों मेथड लगा रहे हैं। पहला क्या है, कंपोजिशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, इसको रा डाटा बोलते हैं। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ दी अर्थमेटिक मीन हम उसमें कैलकुलेट करें जो अनग्रुप्ड डाटा हो। अनग्रुपिंग मतलब जो रा डाटा है सैम्पलिंग करके लाए हैं, उसकी ग्रुपिंग हम नहीं किए हैं, प्रोसेसिंग नहीं हुई है, वो रा डाटा होते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे रा डाटा के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड से लगाएं इसका जो है मीन निकालना, तो क्या होता है अर्थमेटिक में हम लोग करते थे क्या जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना जो ऑब्जर्वेशन होते थे उसको हम लोग टोटल कर लेते थे, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते थे। ठीक, जैसे एक्स और उसको एक्स बार से जो शो करते थे, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश एक्सन डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब इसी को अगर हम जो है और सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे हम समेसन लगा देंगे। समेसन मतलब हो गया जितनी वैल्यू हैं वो आपस में जोड़ी गई हैं। ठीक है, सब समेसन मतलब ये सारी चीज़ें जो है जितनी सीरीज में वैल्यू हो गई हों उनका सम हो गया है, उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, समेसन हो गया। ठीक, और एक्स बार का मतलब होता था कि एक्स में x1 x2 x2 x3 आप जो है बारी बारी जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, समय आपको शो कर रहा है कि हाँ ये सब जोड़ के एक वैल्यू जो है समेसन x जो है मिल गई है। ठीक है, सपोज दैट अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, नहीं रिस्पायरोमीटर है। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन प्योर केसेस वर रिकॉर्डेड।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप स्पायरोमीटर है, उसमें जो है 4 केस हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है रिकॉर्ड किया गया है। अब हमको जो है क्या करना, अरिथमेटिक मीन निकालनी है एबव बाय से। देन इन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स बार लगाएं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसको जोड़ लेंगे। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे 14.9 प्लस 10.8 प्लस 12.3 प्लस 23.3 डिवाइड बाई 4, दिस इज द total is the 4 samples, then it will be 15.235%. next shortcut method. now shortcut used when the number of items in the series is very large. अगर नंबर ऑफ आइटम सीरीज में जो हो ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अभी इसमें जो है 4 सैंपल 5 सैंपल 10 सैंपल जो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, तो हम समेशन वाले फार्मूले से पिछले वाले से कर लेंगे। अगर हमें जो है नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज इज वेरी लार्ज, देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, वेयर एक्स बार इज एक्चुअल अरिथमेटिक मीन, ए इज द एज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन, वी हैव एज्यूम्ड a mean, and d is the deviation of item from the assumed means. D is the deviation from the assumed means, and summation of d is the sum of the all the deviations of the samples of the assumed means and is the total number of the observation. और ये क्या है, जो जितने हम ऑब्जर्वेशन इसके किए हैं, डी क्या है, डेविएशन जो है, जो आपका हमने एज्यूम मीन माना है वो हो सकता है जो आपकी एक्चुअल मीन है उससे जो है वेरी करे, तो उससे कितना वेरी कर रहा है प्लस माइनस जो भी होगा उसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करके फाइनल जो है ये आपका समेशन डी आ जाएगा। ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन होगा। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सपोज दैट एज्यूम्ड मीन कैलकुलेटेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2। एज्यूम्ड मीन हम क्या करते हैं, जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसको जोड़ के उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एज्यूम्ड मीन है। हमने अपना जो है जो मीन मान लिया है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन इज कैलकुलेटेड बाय we have assumed by the dividing of the maximum plus minimum value divided by 2, summing the maximum plus minimum value and divided by 2, and deviation of assumed means of the individual item x1 minus assumed mean plus x2 x2 minus assumed mean and x3 and so on for the every sample. We can calculate deviation of the assumed mean, and all these deviations we have calculated and all summed in the sum of all the deviation. In the third step we have sum of the deviations d. This is the summation of d is calculated by addition. Okay. All of these put in the above formula. X bar is equal to a plus summation small d divided by n. This formula will be applied in the next examples. Suppose that this is the table shows the number of colonies of bacteria grown in 10 agar plate and they calculate arithmetic mean by shortcut methods. ये जो है नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया की 10 अगार प्लेट में जो इसको ग्रो कराया गया है, इसको हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से इसका अरिथमेटिक मीन जो है कैलकुलेट करना है। इसमें ये दिया है, प्लेट आपकी दी है 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका 10 प्लेट दी गई है। नंबर ऑफ कॉलोनीज दी गई हैं, कितना, पहले प्लेट में 60 है, दूसरे में 70 है, देन 80 है एंड 95 है, फिर 100 है, फिर 120 110 है, 115 130 114 160। अब नाउ वी विल स्टार्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सीरियल नंबर ऑफ प्लेट्स। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 10, n इज इक्वल टू 10, n is equal to 10. Total number of the plate is 10, hence the total number of sample is 10, and number of bacterial colonies,
number of bacterial colonies is 60 in the case of first, and 17 second, and third 80, and fourth 95, and so on. It is the total, the summation of the colonies 160. This is the total summation of Ux is 160. Then assumed mean. Assumed mean is we have studied that the smallest value and the highest value we have sum up and divided by 2. 60 plus 160 divided by 2 is equal to 220 divided by 2 is equal to 110. The 110 is our assumed mean. Taking the minimum value plus maximum value, summation of minimum value and maximum value divided by 2. It is the 110. And next in the formula, deviation of from assumed mean. In the case first, this is the x1 minus a. This is the x1 minus a is 110, then it is minus 50, and in this case 70 minus 1 is minus 40, and so on. If we total, this is a minus 145, and in this case this is positive value, and total is the 1 plus 105. If we sum of the deviation, then minus 145 plus 105 is equal to minus 40. Here the deviation is minus 40. Assumed mean is equal 6 plus 110, and D is the minus 40. From the table we have seen, putting the value in the formula, x bar is equal a plus summation d divided by n. Here a is the assumed mean 110, and is the summation of deviation is minus 40, and total number of samples per n is equal to 10. When we will solve is 110 minus 40 upon 10. It is divided by 10, it is divided by 40 divided by 10, it is 4, and 110 minus 4 is equal to 106. This is the answer. Next one is the computation of arithmetic mean of group data. ठीक, दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप डाटा. अगर ग्रुप डाटा दिया है, ठीक है, रा डाटा नहीं है, प्रोसेस डाटा, ग्रुप डाटा दिया, इसकी ग्रुपिंग करी गई हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3 प्लस Fn इंटू xn up to, and divided by F1 plus F2 plus F3 plus plus Fn. If we simplify this formula, then it will be x bar is equal to summation of fx divided by summation of f. If f is the frequency, summation f is the total frequency, x is the values of each item, and fx is the multiplication of frequency and midpoint. Fx is the value of the summation and the midpoint. अब इसमें जो दो तरीके की चीज़ें आती हैं, इसमें डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूस सीरीज होती है. जो है ग्रुप डाटा में दो होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कंटिन्यूस सीरीज होता है. तब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो है डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू एफ समेशन ऑफ एफ एक्स अपान एफ आर. इसको हम जो है क्या करते हैं, 1 अपान इंटू समेशन ऑफ एफ एक्स कर लेते हैं. इसको अगर हम टोटल कर लेंगे फ्रिक्वेंसीज को, तो यहाँ पर हम कैपिटल एन लिख सकते हैं जो है, ठीक है.
अगर सबको टोटल जोड़ लिया जाए फ्रिक्वेंसीज को जितनी दी है तो वो कैपिटल, तो इसमें जो है एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स summation of fx divided by summation of f is the frequency. If we do the total of frequency, sum of the total frequency, it is denoted by capital N. Okay. Step in the calculation: multiplication of each value of x with the corresponding frequency value to obtain. ठीक, मतलब एक्स जो है की वैल्यू जो है सैंपल से उस जो है उसकी वैल्यू से फिर इसके फ्रिक्वेंसी में गुणा किया जाता है, जिससे कि हमको f1 x1 मिल जाए और f2 x2 एंड सो ऑन। देन हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑल दी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं, जितना मल्टीप्लाई हुआ उसको हम लोग जोड़ देते हैं, इसको समेशन एफ एक्स बोलते हैं। मतलब क्या, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, इसका जो टोटल होता है समेशन एफ एक्स होता है। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड दिस टोटल वैल्यू समेशन एफ एक्स बाय दी टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन और टोटल फ्रिक्वेंसी। इसको ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहें या उसको फ्रिक्वेंसी कहें, तो जो उसको जोड़ के जो है इससे डिवाइड किया जाता है, जिसको समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ बोलते हैं, और समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन बोल सकते हैं अगर उसको हम टोटल कर ले रहे हैं तो। जैसे कि फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आप दिया हुआ है, आपका मार्क्स दिए गए हैं और दूसरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट स्टूडेंट के 5 मार्क्स हैं, स्टूडेंट 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट 5 हैं, 10 मार्क्स वाले 7 हैं, 15 वाले 9 हैं। अब इसको हम जो है हम लोग ये टेबुलर फॉर्म में करेंगे, तो इसको जो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है मार्क्स देखते हैं कितने मिले, 5, 10, 15, 20 वाले। इसके बाद नंबर ऑफ जो है इसके ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आएगा। अब इसमें 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2, इसको हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे, मतलब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको समेशन एफ बोला जाता है। जोड़ के कितना है, 50 आ गया है आपका। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स क्या है, ए एफ हो गया और ए एक्स हो गया। ठीक है, एक्स और एफ, इसमें हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, सब में गुणा करेंगे, जो आएगा वो आपका एफ एक्स हो जाएगा। इसको जब टोटल करके जोड़ दिया जाएगा, नीचे वो वैल्यू जो है समेशन एफ एक्स कही जाएगी। इसको जो टोटल हम कर लेंगे तो समेशन एफ एक्स हो जाएगा। तो समेशन एफ एक्स आपका 995 आएगा अगर हम इसको जोड़ेंगे टोटल जो करके, f1 गुणे x1 f2 गुणे x2 करके सब टोटल करेंगे और 995 वो आएगा उसमें। और जो है उसमें जो है कितना हम लोग फ्रिक्वेंसी थी, या इसको कैपिटल एन या समेशन एफ बोल सकते हैं, इससे डिवाइड किया तो ये कितना है, 19.9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब जो है अर्थमेटिक मीन हम ग्रुप डाटा का ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें सीरीज क्या है, कंटिन्यू है, मतलब सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है कहीं जो है। ठीक है, जैसे कुछ में क्या हम लोग सीरीज पढ़े थे, जो है कि सीरीज जो है ब्रेक कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज जो है कंटिन्यूअस में सीरीज जो है एक के बाद एक कंटिन्यू रहेगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं रहेगा, जबकि उसमें जो है कोई इस तरीके से पैटर्न नहीं है, जो है सीरीज ब्रेक हुई थी जो है। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, इन दिस जो है व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देयर इज कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास जो है जैसे कि क्लास कंटिन्यूसली आ रही है, जैसे x0 से x1, देन x1 to x2, x2 to x3, ऐसे जो है कंटिन्यूसली आपको जो है मिलेगी जो है ऐसी सीरीज, और उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई होगी आपकी f1, f2, f3। देन अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन f इंटू m इज द मिड वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। Then m is the mid value of the various class and f is the frequency of the each class
अंडर EFM विद दी एफ डॉट एम जो है सम ऑफ द मिड वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय देयर फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी एंड मिड वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करके हम सम कर देंगे तो ये एफ डॉट एम समेसन मिलेगा। एंड दिस इज द समेसन एफ द टोटल फ्रिक्वेंसी हो गया। कैलकुलेशन जो हम करेंगे स्टेप फर्स्टली क्या करते हैं, द मिड वैल्यू ऑफ द ईच क्लास इज कैलकुलेटेड एंड मल्टीप्लाई बाय ईच मिड वैल्यू by the respective frequency to obtain value of FM and then divide. Let's see the example in this case. By example is the value of rate of reproduction of 50 fishes of a species of fish are given in frequency table. Calculate the mean value of frequency from grouped data of continuous series। ठीक है, मतलब 50 फिशेज हैं और किस स्पीसीज है उनका जो है फ्रिक्वेंसी टेबल में दिया गया है, उनकी मीन वैल्यू दी गई है, कुछ नहीं मीन वैल्यू नहीं दी है, उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, उसका क्लास इंटरवल दिया गया है और हमको ये बताना है कि उसके फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो है क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सब हमको बताना है ग्रुप डाटा ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज का जो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास इंटरवल जो है x0 से हम लोग कर रहे थे, x0 से x1 हो गया, 1 से 10, x1 से x2 गया 11 से 2, ऐसे करके आपका आगे नेक्स्ट कंटिन्यू होता जा रहा है ये। ठीक है, 71 से 80 तक का इसमें दिया हुआ है, इसका क्लास इंटरवल दिया गया। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, हमको मिड वैल्यू निकालना है, मतलब मध्य की वैल्यू। तो मध्य की वैल्यू में क्या होगा, इसके और इसके को हम जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एडिंग x0 प्लस 1 x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। इन दिस केस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। इन दिस केस 11 to 20, तो 20 plus 11 divided by 2 is equal to 15.5. This is the mid value. We can calculate the mid value simply adding of the class higher plus lower divided by 2. The 70 plus 61 divided by 2 is 65.5. And this is a frequency. It is given in the table already. This is a frequency. In the total is the 50। ठीक, इज द फ्रिक्वेंसी टेबल एंड टोटल जो है फ्रिक्वेंसी जो है आपका फिशेज टोटल 50 दिया गया था। तो पहले का 3 है, सेकेंड वन में 11, थर्ड में 7 है। अब नाउ वी विल फाइंड आउट समेसन एफ डॉट एम, देन समेसन एफ डॉट एम विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वैल्यू, this value and so on. Total divide is, in the case of first value 5.5 into 3 is equal to 16.5, and in the second case 15.5 into 11 is equal to 170.5, and so on. And then after we can take the sum of the summation of the f dot em. This is the total of this. If we add all of these samples values, then it will be summation f dot m is equal to 1875, and here it is already given that a frequency is 50. Then we can divide it to 1875 divided by 50. This is usually the mean of the group data continuous series. Okay. इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो वेटेड अरिथमेटिक मीन और जो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है सेकंड, मतलब इसके जो है नेक्स्ट क्लास में, इसकी थर्ड क्लास होगी जो है मेजर ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी की। तीसरी क्लास में हम लोग जो है वेटेड अरिथमेटिक मीन कवर करेंगे
and geometric mean and harmonic mean, and after that we will cover the mean, cover the median and mode and the differences among the mean, median and mode in different conditions in the following lecture series. So please like, share and subscribe our channel and share with others aspirants of the UGC NET and other state eligibility test and the MSc semesters also. It is important topics for the by this exam. So please like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.